Let me introduce our today's speaker to you. He is Dr. Gaurav Ahuja, who is presently working as assistant professor at the Department of Computational Biology at Indraprasth Institute of Information and Technology, Delhi. Well, he had a phenomenal journey so far. He received his PhD from the University of Cologne, Germany, with in natural sciences. He is a molecular biologist by training and possesses a vast experience in functional and chemogenomics. After the completion of his PhD degree, he worked as a postdoctoral fellow at several renowned institutes, including Center for Molecular Medicine, Cologne, Max Planck Institute for Aging, and Lee Kong Chian School of Medicine, Singapore. Presently, he is an assistant professor at the Department of Computational Biology at IIITD. The Ahuja lab has been instrumental in decoding the molecular complexities of the chemosensory mechanisms at IIITD. Within 2.5 years of its inception, the group has published multiple articles in internationally reputed and peer-reviewed journals. Now, I would like to request Dr. Ahuja to guide our students. Just 15 years back, I was sitting there. 15 years back, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है. 15 साल पहले मैं वहाँ पे बैठता था. प्रणव सर यहाँ पे खड़े होते थे. तो 15 साल बाद थोड़ा सा चेंज हुआ कि I just became by luck, by chance, by hard work, whatever you say, I became professor. ठीक है, but my journey is same as like of yours. So today's agenda is just to tell you my journey when I was sitting on that side and how I came to this side. इस पूरी journey में क्या क्या हुआ. And I think this is utterly important because India में one of the biggest thing which I faced as a student is our education system, our society kills our confidence. वो हमेशा आपको they try to enforce on you, you are not good. But now the point is, good itself is very relative. What is good? In my point of view, you may be a stellar student, but in somebody else's perspective, you may not. Am I right? तो शुरू से घर वालों से लेके रिश्तेदारों से लेके टीचर से लेके every person wherever you encounter, they try to kill your morale. Am I right? Yes, sir. In the end of the day, किताबें पढ़ लो, रट लो, MCQs देख लो, you will qualify CSI. मैंने भी 2 बारी qualify किया. It's a very interesting journey. थोड़ा सा मजा आएगा. So in India, I have qualified all the exams, whatever come my way. JNU BTech वाला जो होता था, I don't know whether it happens now or not. I also qualified that. Soon after CSIR, I also qualified that. So how it all started, as usual, I was a bachelor student in Jamia Millia Islamia in the biotech department, the department which was newly incepted. I got a BTech position and the biotech position, but at that time, the biotech just started in India. और सबने बोला इसका फ्यूचर है. तो मैं बीटेक छोड़ के बीएससी में चला गया. और फिर बाद में पता चला बीटेक हैज इट्स ओन वैल्यू, बीएससी हैज इट्स ओन वैल्यू. तो बायोटेक ने बीटेक वाला स्वाद नहीं दिया. Am I right? Because whenever you apply for a PhD position abroad, they ask you 4 years of study. अब बीएससी करोगे तो 3+2 करना पड़ेगा. सिंपल लॉजिक है. तो मैं उस ट्रैप में फंस गया. बायोटेक इज ए बूम. So I joined Jamia Millia Islamia. As usual, everybody is not privileged from the, house. I was also one among them. I was from a very suboptimal family, financially okay-ish, sort of. Now we have good money, not a problem. So now I should not complain. But at that time, it was very challenging. I think some of you may also face this issue. It's very natural in a country which is developing. Am I right? Yes, sir. तो मेरे भी फैमिली का थोड़ा हिला हुआ था. And the point is, my elder brother was a doctor. He was doing his MBBS at that time. But he was very, पढ़ने वाला sort of concept guy. So one day what happened after my class 12th, because I was one of the person who always, roam around.
मेरे को मजे चाहिए जिंदगी के, मेरे को काम नहीं करना. So the biggest shock come to me because my father has a workshop, very small workshop, जहाँ पे everybody has a black hands काम कर करके. 12th का रिजल्ट आया, पापा took me down and said चलो लग जाओ. मैंने कहा भाई डॉक्टर हाथ. So that was the first shocking thing I got in my career. Very simplified. क्योंकि before that I was a person who always been the center of the friends. मैं बहुत पतला था, अच्छी अब तो मोटा हो गया. So at that time I was like पढ़ाई को छोड़ के वो सब कुछ करना वो मैं करता था. I mean this is how you grow, am I right? Some people give importance to education much early, some people give importance a little bit later, but in the end of the day if you stay in academia you need to balance that. If you work hard early you enjoy later, if you enjoy early you work hard later. That's the balance needs to be done. Nature is always ensures a equilibrium, whether it is early equilibrium or late equilibrium तो बनेगा. So यही हुआ. मैं डर गया यार, मैंने कहा ये क्या करवा रहे हैं मुझसे. तो उसके बाद क्या हुआ, it's a very and just some of you don't know me, I was from Haryana and our English is as bad as a nursery guy. अंग्रेजी के सुर मुझे नहीं समझ आते थे. And you will be shocked. Is, am, da, do, does, has, have, I learned after my masters. सब हिला हुआ था. हरियाणा से थे तो ड्रेसिंग सेंस तो वैसे ही अच्छा था हमारा. मैं तो चप्पल पहन के जाता था यूनिवर्सिटी. So I joined Jamia. I got fooled with the BTech and the Biotech. So Biotech join कर लिया. वहां पे देखा तो इट्स ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी. टीचर आ रहा है, क्रोमोसोम की फोटो बना रहे हैं ऐसे ऐसे तितली वाला नहीं होता, और कहा ये सेंट्रो बीच में दिखाया ये सेंट्रोमेयर है और ये क्रोमेटिड्स है. आई सेड वेरी गुड. तो मैंने कहा ये पढ़ने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, जामिया का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया ये. सो एनीथिंग वाज फाइन, बट वन थिंग द ब्यूटी वाज कि मुझे ये चीज पता थी. एंड आई कैन टेल यू, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, don't make friends of your age. Always make a successful senior as your friend. You will always get success. ये एक पहला मंत्र है जो मैं तुम्हें दे देता हूँ. And I am still following this from the day one. So I met a guy called Ubaid. He was a Kashmiri. He was sitting in library all the time. एक बारी मुझे पकड़ लिया ऐसे. मैंने कहा बोलो सर. कह रहे क्या करता है क्लासेस में. मैंने कहा क्या करूं. कहते फॉरेन ऑथर्स की किताब पढ़. उसने दे दी ब्रूस एल्बर्ट, उसने दे दी वॉटसन, बेंजामिन पियर्स, हार्पर, लेनेंजर, व्हाइट एंड व्हाइट. तो ये सारी पढ़ी. जब उसने मुझे दी तो मैंने उसकी जो प्रीफेस होता है पहले वाला, उसकी अंग्रेजी समझ नहीं आ रही तो आगे की कैसे समझ आएगी. एम आई राइट? क्योंकि अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट तो वैसे ही हिले हुए थे. तो मैं घबरा गया. मैंने कहा इससे अच्छा तो वो सत्यनारायण की बायोकेमिस्ट्री की किताब आती है, वो सब कुछ बता देता है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज बाय 6 बायोफॉस्फेट सब आता है. मैंने कहा वही तो गोरा कह रहा है, गोरे की बात समझ नहीं आ रही. तो मैंने फिर सत्यनारायण की तरफ भाग जाता हूँ. वो मुझे ड्रैग करते थे कि वो मुझसे ना खींच लेते थे इंडियन ऑथर्स की किताब. एंड ही बेसिकली गिव्स मी द फॉरेन ऑथर एंड आई जस्ट गेट लाइक यार क्या है. मैंने कहा सर दोनों एक ही तो बात बोल रहे हैं, वो मेरी भाषा में बोल रहा है, वो दूसरी भाषा में बोल रहा है. कहता नहीं तुम रीड करो. तो मैं एक व्हेन यू आर फुलिश यू कीप ऑन डूइंग समथिंग इवन इफ यू फॉल. इट्स जस्ट लाइक ए एंट जो चढ़ती है ना दीवार पे, बार बार गिर जाती है. तो अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ. बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ता था. कि तुम भी पढ़ के देख लो, आई कैन गिव यू इन राइटिंग. तुम व्हाइट एंड व्हाइट के यहाँ पे जितने भी मुस्कुरा रहे हैं ना, तुम 4 पेज पढ़ लो और 4 दिन बाद मैं पूछूंगा उन 4 पेजों में क्या लिखा था, नहीं याद होगा. और वही 4 पेज तुम सत्यनारायण के पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ याद होगा. दैट इज द डिफरेंस. एम आई राइट? तो ये होता है, ये सबके साथ होता है. कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता. तो मेरे साथ भी हुआ. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने रट लिया उसको, जैसे जैसे रट लिया. तो सेकेंड ईयर में मैं तफरी मार रहा था बाहर. अपना स्वैग था, एक अलग से घूमता था. दोस्त थे नहीं, एक ही था. तो वहां पे मुझे स्वामी जी मिले. यहाँ पे स्वामी है ना पास. हाँ ये रहे स्वामी जी. स्वामी जी मिले. तो स्वामी जी ने मुझे बोला कि तू क्यों अपना वक्त खराब कर रहा है. उन्होंने मुझे प्रणव सर के बारे में बताया.
तो आई मीन आई गॉट एक्साइटेड, क्योंकि उबैद जो थे, जो मेरे सीनियर थे, जो गाइड करते थे, तो ही ऑल्सो यूज टू शो मी द नोट्स ऑफ प्रणव सर। तो फिर मैं क्या करता था, इंस्टेड ऑफ सुबह 7:30-8 बजे आके मैं यूनिवर्सिटी की बजाय जाके मैं पाथ फाइंडर चला जाता था। अटेंडेंस तो मिल ही जाती है, इफ यू नो द कनेक्शंस यू विल ऑलवेज गेट, यू नो। क्लास तो मैं वैसे ही अटेंड नहीं करता था। द होल बैचलर्स आई हैव अटेंडेड मे बी 10-20% ऑफ द क्लासेस, एंड आई यूज्ड टू कम टू पाथ फाइंडर। कभी कभार तो मैं रात में वहीं पे रुकता था बिजेंदर जी के साथ। देयर इज अनदर ड्यूड कॉल्ड बिजेंदर, इफ यू नो, है वो नीचे ही है। तो ये और मैं पूरा वहीं पे डेस्क पे बैठे रहते थे। तो मैंने पढ़ाई की। प्रणव सर ने बहुत, actually he is the one who created the foundations of my biology, let me put it in this way. So he is the one, you know, उनका जो पैटर्न है प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर के लीनियर, सारे कहते हैं सर्कुलर, लीनियर भी होता है। आई थिंक इट इज स्टिल कंटिन्यू टिल डेट। अच्छा बताओ सर्कुलर में कैसे होता है, हमेशा सर्कुलर होता है कि लीनियर भी हो सकता है? यू नो, दिस इज हाउ ही टीच, एम आई राइट? सो अच्छा बताओ एंटीबॉडीज कितनी तरह की होती है? लोग कहेंगे 5 तरह की। जी नहीं, एक छठी भी होती है। और फिर वो छठी वाली निकाल लेते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन जो आता है वो छठी से ही आता है, वो पहले 5 से तो आता नहीं है। एम आई राइट? तो इस तरीके से मैं भी पढ़ा, तो इससे ना मेरे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट खुल गए बायोलॉजी में। तो आई मीन यू नो व्हेन आई जॉइंड पाथ फाइंडर, आई मीन आज मेरे को बोलने में शर्म नहीं आती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। एंड आई थिंक प्रणव सर ने उस समय मेरे पैसे भी माफ कर दिए थे। ही चार्ज मी ओनली 25% ऑफ माई, क्या कहते हैं, ट्यूशन फी। जो यहाँ पे पैसे देते हो ना तुम लोग, मैं भी देता था, लेकिन उस समय मेरे घर में पैसे नहीं थे। तो मैंने सर को बताया, सर ने मुझे, पहली बात तो एक इनका टेस्ट होता है ना पाथ फाइंडर में, तो मैं उसमें मेरी 2nd रैंक आई थी, और मेरी 1st रैंक मेरे दोस्त की आई थी। जो मेरा जामिया वाला दोस्त था ना, उसको भी मैंने अपने साथ, मेरे कहा कौन अकेला जाए, उसको भी घसीट लिया। तो वो 1st रैंकर आ गया, मैं 2nd रैंक बन गया। उसको मिलना भी था बिकॉज ही हैज नो फादर, सो इन दैट केस आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि इसको मिल गया। लेकिन वट एवर द डेल्टा वाज देयर इन द कंसेशन, प्रणव सर ने मेरे को माफ कर दिया। सो दैट इज समथिंग आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल टू हिम। तो हो गया। अब बैचलर्स के बाद मुझसे लोगों ने पूछा कि करना क्या चाहते हो। अब यहाँ यू नो व्हेन यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पाथ फाइंडर, दैट ऑल्सो फ्रॉम बैचलर्स, JNU लाइफ साइंस जाना है। JNU के गीत तो सर आज भी गाते ही होंगे। JNU लाइफ साइंस, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स, बायोटेक डिपार्टमेंट। तो मेरे अंदर भी ये था JNU जाना है, या दूसरा मदुरई कामराज। सो JNU हो नहीं पाया, आई वेंट टू मदुरई कामराज। तो वहां पे मेरा हो गया सिलेक्शन, इंटरव्यू सब करा के मैं मदुरई चला गया। अब मदुरई में मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, और वहां पे उनको हिंदी नहीं आती थी। इट्स ए नेचुरल, यू नो, आई मीन चेन्नई एक्सप्रेस तो देखी होगी लोगों ने। तो मेरे बायो, सी द ओनली थिंग विच कीप्स मी रनिंग टिल डेट, लेट मी क्लैरिफाई दैट, it's my strength in biology. Even in my department, after coming back to India, I mean, we got, my lab has done phenomenal. I will tell you about science as well. I will not just give you this gyan, how to tackle scientific questions, mental abilities and all that. I will tell you. But उस समय मेरे को सिर्फ बायो आती थी और कुछ नहीं आता था। तो I mean, why I'm telling you this, because I was the worst of the worst student ever. और literally meanings में worst. सिर्फ बायो आती थी, वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी को नहीं पता था MKU में कि प्लाज्मिड सर्कुलर भी होता है कि लीनियर भी होता है, वो मुझे पता था क्योंकि मैंने पाथफाइंडर में पढ़ाई की थी। एम आई राइट? तो उसके बाद मैं मदुरई गया। मदुरई जाने के बाद वहां पे देखा थी, मदुरई हैज ए वेरी नाइस कल्चर, MKU, बिकॉज ऑल योर सीनियर्स दे गो अब्रॉड टू डू PhD। हर एक बंदा अब्रॉड जाता है वहां से। द मोमेंट यू हैव ए MSc फ्रॉम मदुरई, खासकर उनका जो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है, 90% सक्सेस रेट है, यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप टू गो अब्रॉड। मेरे घर से तो कोई नेपाल भी नहीं गया था आज तक। एम आई राइट? उस समय तो मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, सॉरी 2008 नाउ। 5 से 2008 तक BSc की, 2008 में आई वेंट टू मदुरई। तो उस समय तो वो भी नहीं होता था, व्हाट्सएप कुछ नहीं होता था, वो बाद में आए हैं। ठीक है, एंड्रॉइड भी उस समय बहुत 2.2 चलता था, आजकल तो 12-13 आ चुका है। सो वी आर लिटिल बिट वेरी इन द पास्ट। हाँ, सो मैंने अपने एक सीनियर थे साइकत बनर्जी, उनसे मैंने कहा सर
वो ही वॉज गोइंग टू आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी इन द यूएस. सो और बाकी सब भी थे, बट ही वॉज द वन हु वॉज डूइंग हिज प्रोजेक्ट. बाकी सारे सीनियर्स निकल चुके थे. तो मैं उसके पास गया ऐसे चप्पल पहन के अपना. मैंने कहा सर हम भी अमेरिका जाएंगे. एंड इट इज ट्रुथ. I mean, what I am telling you is exactly in front of my eyes because these are the things I cannot forget in my life. तो मैंने उसे कहा सर मैं भी जाऊंगा. उसने मुझे एक सरल तरीके से कहा, उसने कहा गवार लोगों की कोई जगह नहीं है बाहर. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय सीनियर टोल्ड मी. उसने कहा कि, मैंने कहा सर कौन सी किताब पढ़नी है, बैरेंस पढ़नी होती है और टॉफल आइलेट्स ये क्या होता है, ये थोड़ा समझा दो ना. उसने कहा कि नहीं गौरव, तुम्हारी वोकेबलरी आज से अगर बढ़ाना शुरू की जाए ना तो अगले 10 साल में तुम बैरेंस के भी पढ़ पाओगे. बिकॉज आई वॉज वेरी बैड. ही वॉज ऑल्सो राइट ना. गुस्से खाने से क्या होता है, वो तो सच्चाई बोल रहा है. द ट्रुथ इज बिटर. एम आई राइट. उसने मुझे बोला, उस समय मुझे गुस्सा चढ़ा. तो फिर अगेन यू नो व्हेन यू हैव ए हैबिट कि दीवार पे सर मारना है, तो मेरी आदत थी. बिकॉज दैट इज व्हाई आई एम वेरी जिद्दी समटाइम्स. तो मैंने बैरेंस खरीद ली. 250 रुपए की आई थी. उसके बड़े अजीब से पेज होते हैं, यू नो ट्रांसपेरेंट टाइप. तो वो मैंने बैरेंस खरीद ली. हर रोज सुबह 4:30 बजे छत पे चढ़ता था अपने हॉस्टल के, और मैं बैरेंस का रट्टा मारता था. अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सारे रट्टे मारे. वोकैबुलरी याद नहीं होती थी. एंड ऑल्सो देयर इज अ वेरी नाइस हिंदी टू बैरेंस का लर्न करने के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस बना देते हैं. तो मैंने वो सब किया जो एक आम आदमी करता है, इंडियन ना. तो मैंने अंग्रेजी का जीआरई दिया. आई गॉट समथिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, क्योंकि वो इतने अच्छे भी नहीं थे इतने गंदे भी नहीं थे, बट आई क्वालिफाइड. आई वॉज कैपेबल इनफ टू गेट नॉट इन द मेन यूनिवर्सिटीज बट समवेयर इन द डिसेंट यूनिवर्सिटीज इन द यूएस स्कॉलरशिप. देन आई गिव टॉफल में भी क्लियर कर लिया जैसे तैसे बोल के. देन आई नो माई डेफिशिएंसी. सी, एक चीज तुम्हें अपना पता होना चाहिए, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर डेफिशिएंसी. जिसको ये चीज नहीं पता ना, वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. माई स्ट्रेंथ वॉज बायोलॉजी. आई वेंट टू नेपाल अलोन. उस समय 2010 में. आई मीन आई वॉज ए किड. एम आई राइट. अब तो मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है. आई वॉज ए किड लाइक यू. अब तुम सोचो, तुम नेपाल एयरपोर्ट में आज की डेट में तुम्हारे पास फोन है. मेरे पास कोई फोन नहीं था. मैं नेपाल एयरपोर्ट पे खड़ा था, सब लोगों को हर कोई ले गया. आई वॉज ए किड विद टीयर्स इन माई आईज बिकॉज माई पेरेंट्स वर नॉट देयर. नोबडी वॉज देयर. मैं बिल्कुल पहली बारी, द फर्स्ट टाइम आई गॉट शॉक्ड बिकॉज यू नो घर से बाहर नहीं निकला ना, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए. हर किसी का बंदा कोई आता है लेके चला जाता है, और मैं वहीं पे खड़ा रहा विद ए होप कि कोई आएगा. आई वॉज स्टूपिड. देन आई डिटरमाइंड. मैं एयरपोर्ट से पैदल जाके, क्योंकि मेरे पास होटल नहीं था, आई वॉज रेडी टू स्लीप आउटसाइड बिकॉज नेक्स्ट डे आई वॉन्ट टू गिव एग्जाम फॉर सब्जेक्ट जीआरई इन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स. उसके लिए मैं नेपाल गया था. एंड आई वॉज द एशिया टॉपर इन बायोलॉजी. यू कैन चेक, इट इज इन रिकॉर्ड्स. मैं जीआरई सब्जेक्ट जीआरई बायोलॉजी में आई वॉज द एशिया टॉपर. माई परसेंटाइल वॉज 99 परसेंटाइल. अरे ये ताली नहीं. मैं वो नहीं कह रहा. नाउ आई पुट माई एप्लीकेशंस टुगेदर. लोग देखते हैं चलो अंग्रेजी हिली हुई है, टॉफल हिला हुआ, अरे ये क्या कर दिया. बिकॉज यू नीड दैट थर्ड थिंग. सब्जेक्ट जीआरई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन तब भी मैंने दिया. द रीजन बीइंग वो मुझे प्रोटेक्ट करता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो मैंने दे दिया, हो गया. तो उसके बाद आई गॉट ए ऑफर फ्रॉम द यूएस, simplified offer. So what I used to do is, during my MSc, every night I used to send 50 emails to 50 professors worldwide कि मुझे ले लो. अभी स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है. मुझे ले लो. There is a format. मैं CV चिपका के डियर प्रोफेसर ब्ला ब्ला ब्ला, वो प्रोफेसर को चेंज कर देता था. आई हैव चेक्ड योर वेबसाइट, टोटली फैसिनेटेड अबाउट योर वर्क एंड ब्ला ब्ला ब्ला. वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. एक दिन क्या हुआ, मैंने अमेरिका में किसी को भेजा. ही वॉज अ जर्मन स्टेइंग इन द यूएस. आई सेंड हिम 1 पेजर ऑफ ईमेल. ही सेंड मी 5 पेजर्स ऑफ रिप्लाई. उसने मेरी ईमेल में ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करके मुझे नहीं. आई स्टिल हैव दैट.
And it is, if you come to my office in IIIT Delhi, I have pasted it on the wall. This is what I was. तो उसने मुझे कहा, उसने एक चीज लिखी, यू कैन नेवर एवर एवर नेवर बिकम ए प्रोफेसर इन योर होल लाइफ. उसने भी मुझे उसमें लिखा कि बिफोर अटेम्प्टिंग टू परस्यू ए career in biology or in academia, first you go to a language school and learn English, which is truth. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो ये चल रहा था ना. अच्छा बहुत अच्छे लोग मिले ना जिंदगी में. नहीं, अच्छे भी मिले. आई टोल्ड यू, आई एम टेलिंग यू द बैड पार्ट्स, नॉट द गुड पार्ट्स. तो मुझे बहुत दुख हुआ. तो फिर फाइनली लकीली आई गॉट ए ऑफर फ्रॉम न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम द टेक्सास, द सदर्न पार्ट ऑफ द यूएस. मेरे को लेटर आ गया स्कॉलरशिप के साथ. दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे. मैं छत पे जाके चीखा, ठीक है, कि मैं अब अमेरिका जाऊंगा. सो इट वाज ऑलरेडी February March. आई केम बैक टू क्या कहते हैं, दिल्ली. काम खत्म हो गया, मैं आ गया वापस घर. तो घर आने के बाद पापा से मैंने कहा, पापा 10 दिन तक मुझे कोई ताना मत देना. मेरे को पता है मैं जवान हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, कमाने लायक हो चुका हूँ, बट गिव मी 10 days, क्योंकि वो मुश्किल था. एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई मीन आई डोंट वांट टू नेम समबडी, बट व्हेन आई वाज लीविंग मदुरई, माय ओन थीसिस सुपरवाइजर, ही केम, ही लव्स मी, वी हैव अ लव हेट रिलेशनशिप समहाउ. सो ही वाज टेकिंग मी टू द क्या कहते हैं, मेन गेट, जहाँ से बस पकड़ के मुझे रेलवे स्टेशन जाना था. तो उसने मुझे कंधे पे हाथ रख के एक चीज बोली कि गौरव, आई नो कि यू फिनिश्ड योर मास्टर्स, यू आर ए वेरी लवली गाय. मेरे को तुम बहुत अच्छे लगते हो. उसको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन ऐसे ही बोला अंग्रेजी में. तुम्हें मैं एक जॉब दिला देता हूँ MR की, तुम MR की नौकरी कर लो, और आई हैव कनेक्शंस. मैंने कहा चलो सर, थैंक यू, अच्छा लगेगा मिलके. तो मैं घर गया, क्योंकि मेरे को पता था अमेरिका जाना है, तो मुझे जाने नहीं दे रहा था शायद. घर गया, वहां पे देयर आर सम फाइनेंशियल इश्यूज. माय फादर सेड ही कैन नॉट अफोर्ड द एयर टिकट्स. 1.5 लाख रुपए मांगे थे मैंने इंडिया से अमेरिका जाने की. उस समय 1.5 लाख रुपए लगते थे. पहले यहाँ से वाशिंगटन डीसी से एल पैसो से बस करके मुझे यूनिवर्सिटी जाना था. माय फादर सेज ही हैज ऑलमोस्ट गॉट बैंकक्रप्ट. आई हैव नो मनी. कैन यू इमेजिन हाउ मच आई क्राइड. कितनी मेहनत की थी मैंने जिंदगी में वहां तक उस लेटर को लाने के लिए. I think as a student, तुम लोगों भी, you guys are also struggling in one way or another way. मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया. अगर तुम्हें मंजिल मिलने के बाद भी अगर तुम ना जा पाओ because of any factor, how do you feel? तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया. I got disheartened. So I had a very nice email address जो मैंने सिर्फ एप्लीकेशंस के लिए बनाया था, Gmail का. उसको अगर खोलोगी सेंड आइटम्स में ना, हर दिन 50 ईमेल आते हैं. तू रो रही है पागल. सुनो, मजा आएगा यार ऐसे लाइट की. मेरे को मैं वो हुआ. तो उसके बाद क्या हुआ, नहीं अभी अच्छी चीज आएगी, आई प्रॉमिस्ड यू. सी, यू हैव टू बी ए फाइटर. सो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर माई मास्टर्स उसने कंधे पे हाथ रखा, सब कुछ हो गया. मैं घर आया. घर आके पापा ने कहा कि कोई फेलोशिप नहीं है, ये नहीं है, यू जस्ट डू ए जॉब. With the help of somebody, I got a job in a school. I think Swami, you know, मॉडर्न विद्या निकेतन ना. तो मैं वहां पे एक स्कूल टीचर की तरह सुबह 2 घंटे के लिए टेम्परेरी पोस्ट पे पढ़ाने जाता था. एंड आई हैव 2 CSIRs बाय द वे दैट टाइम. तुम जो जिस एग्जाम के लिए जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, मेरे पास 2 CSIR थे. 33rd रैंक ऑल इंडिया. ठीक है, लेकिन मुझे इंडिया से PhD नहीं करनी थी. तो पता नहीं, शायद क्योंकि उस समय PhD की स्कॉलरशिप थी 16,000 रुपए या 14,000 रुपए. Or that is not enough because by teaching I was earning around 31,000, 35,000, which is almost double. तो मेरे को टीचिंग ही करनी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे. That is the requirement of my family. So PhD was my requirement, which nature has already kicked off. जो मेरे को करना था. So finally क्या हुआ कि मैंने अपने सारे emails बंद कर दिए. मैं सुबह तैयार होके सुबह 6:30 बजे जाके ट्यूशंस पढ़ाता था और रात के 7-8 बजे तक से पढ़ाता ही रहता था. And I earned a lot of money. पैसा वॉज नॉट ए प्रॉब्लम एट दैट टाइम. उस समय जब लोग बटन वाले फोन रखते थे, उस समय मैं उसका आता था, पाम का आता था, उसके अंदर विंडोज चलती थी, मैं वो वाला फोन यूज करता था. पैसा था लेकिन हेल्थ खराब हो गई. आई नीड सम रिलैक्सेशन, एम आई राइट?
तो अभी आई मीन एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट। सो ऐसी जिंदगी में चलता गया एंड देन फाइनली आई टोटली क्लोज्ड ऑल माय ईमेल्स। मेरे को वो ईमेल एड्रेस देखना ही नहीं था क्योंकि आई वाज सो डिसहार्टन्ड। सो एक दिन क्या हुआ, मेरी पहली सैलरी आने में ना स्कूल में बड़ा अब यहाँ से पॉजिटिव है तो तुम्हें आंसू नहीं आए तो मेरी पहली सैलरी आने में, सी दिस इज हाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट कि जिंदगी में ना पलटी कभी भी लग सकती है। आई नेवर मेक एनी एनिमीज इन माई लाइफ बिकॉज वन थिंग आई लर्न, इफ ए पर्सन हु इज वीक टुडे कैन बी योर बॉस टुमारो। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है। दिस इज वॉट आई हैव लर्न इन माई एंटायर कैरियर। तो तभी मैं लोगों से पंगे नहीं लेता और अपने आप को पीछे पीछे यू नो आई जस्ट कीप माई सेल्फ अवे कि मुझे अकेला छोड़ दो। इफ यू टॉक टू माई वाइफ लाइक व्हाट इज द फेमस डायलॉग गौरव से, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरे को अकेला ही छोड़ दो, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। सो एक दिन मेरी सैलरी आने में टाइम था क्योंकि इन इंडिया आई लर्न कि स्कूल पहले डेट, क्योंकि वो TDS टैक्सेशन का होता है 1.5-2 महीने बाद, तो मेरे को पैसे कमाए नहीं थे। माई फादर नोस कि पैसा आने वाला है, तो उस समय थे नहीं। तो मेरा मन तो यू नो देयर इज ए स्मॉल किड इन ऑलवेज देयर इनसाइड यू कि यार एक बारी देख लो शायद किसी का ईमेल आया हो, क्योंकि आप जब 50 ईमेल पर रात को छोड़ते थे, कम से कम 1000 लोगों के पास 2000 लोगों के पास ईमेल गया, किसी का तो रिप्लाई बाद में भी आ सकता है ना। तो वो एक छोटी सी, क्योंकि उस समय घर पे इंटरनेट तो होता नहीं था, तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर कि थोड़े 10 रुपए दे दो, 10 रुपीज। आई स्पेंड आज की डेट में पर डे खर्चा मेरा पता नहीं कितना है, लेकिन उस समय 10 रुपए जो थे ना, एंड माई फादर आई मीन यू नो व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल बर्डन इन योर फैमिली, sometimes your parents are also frustrated because the amount of expenditure is more than the amount of earning। ये सबके साथ होता है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे पिताश्री ने 10 रुपए निकाले, वो बाइक पे थे और वो जमीन पे गिर गए पैसे, और मुझे 4 गालियां दी। इन पंजाबी गालीज इज वेरी कॉमन, सो डोंट वरी। 4 श्लोक सुनाए कि किसी काम का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ले मर। मैं वो 10 रुपए उठाए एंड देन 10 रुपीज चेंज माई एंटायर लाइफ। वो 10 रुपए ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। आई वेंट टू द इंटरनेट कैफे, हाफ एन आवर टाइम मिलता था 10 रुपए में, शायद किसी को पता हो अगर बचपन में कोई गया हो, तो आधा घंटा मिलता था। आधे घंटे में मैंने वही अपना ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड, एंड आई कम टू नो आई गॉट ए फेस टू फेस इंटरव्यू इन जर्मनी, इन कोलोन, इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल स्टार्टेड बाय डेलब्रुक। लूरियन डेलब्रुक पढ़ा है ना, एक्सपेरिमेंट, फ्लक्चुएशन एक्सपेरिमेंट पढ़ाया होगा सर ने, म्यूटेशंस वाला, उसी डेलब्रुक का इंस्टीट्यूट था। वहां से मुझे इनविटेशन आया था और मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने उसमें अप्लाई कब किया था। हियर कम्स द स्टोरी। तो वो मेरे को आया लेटर, मेरे दिल में एकदम से यू नो देयर इज ऑक्सीटॉक्सिन, वैसोप्रेसिन, एड्रेनलिन सिक्रीशन, तीनों का एक साथ ही हो गया। तो मैं बहुत खुश हुआ। एंड देन आई वेंट टू दिस क्या कहते हैं आपका, घर गया। मेरे प्रिंट आउट, मैं तो चाहता था कि प्रूफ ले लो, लेकिन प्रिंट आउट के पैसे नहीं थे ना। 5 रुपए प्रिंट आउट होता था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, तो प्रिंट आउट के पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, इस वेब पेज को ना ऑफलाइन स्टोर करके रख लो, ईमेल का स्क्रीनशॉट, मैं आके पापा को लेकर आ रहा हूँ, इसको दिखाऊंगा। तो फिर मैं घर आया तो मैंने पापा को कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। Then at that time I wrote to them because they want a confirmation whether I am interested in coming to Germany so that they can send me the documents for my visa। आजकल तो ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। तो मैंने उसका नंबर देख लिया नीचे वाला, क्योंकि कंफर्मेशन, वो ईमेल 25 दिन पहले आया था, तो मैंने उसका नंबर देख लिया। और नंबर देखने के बाद मैंने अपने पापा का प्रीपेड था, उसमें 120 रुपए पड़े थे। और यू नो एट दैट टाइम ISD कॉल इज 100 रुपीज पर मिनट। हाँ, 2010 में 100 रुपए प्रति मिनट की ISD कॉल होती है। तो मैंने जर्मनी कॉल किया एंड द लेडी इज कैथी, शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड नाउ एंड शी इज इन माई फेसबुक, वेरी लवली लेडी। एंड यू नो आई कॉल्ड हर इन माई ब्रोकन इंग्लिश, और उनसे मैंने कहा कि मैम ये आपने ईमेल भेजा, आई एम इंटरेस्टेड, तो बताओ जर्मनी कैसे आना है, जैसे यू नो जैसे दिल्ली से नोएडा आना है। तो उसने मुझे कहा यू आर लेट, you are late, the reason being I sent you this email 25 days back and it is written you need to reply in within 7 days, now you are already 25 days extended, तो तुम्हारा हो गया काम,
तुम अपनी नौकरी करो. But the lady was good. She also told me there are 10 more candidates like you who failed to get visa. So what we are doing is we have total 10 international scholarships. 8 are already filled. There are 2 are pending. उन 2 के लिए लेकिन but there are 30 candidates. So earlier the competition was 8 divided by 30. Now the competition is 2 divided by 30. Success की probability. तो मेरी probability कम थी लेकिन मैंने कहा तब भी हम जाएंगे, जाना तो पड़ेगा. उस समय भी मेरी सैलरी तो आई नहीं थी, तो मैंने पापा से बोला पापा मेरे को ना जर्मनी जाना है. यू नो माय फादर वाज आल्सो अंडर वेरी बिग प्रेशर बिकॉज वी आर ए वेरी थिक फैमिली एंड ही वाज द ओनली ब्रेड अर्नर व्हाटएवर एट दैट टाइम. नाउ वी रेस्क्यूड. सो माय फादर टोल्ड मी कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे को जर्मनी भेजने के. भी जब यूएस नहीं भेजा तो जर्मनी कैसे भेज दूंगा, पैसे ही नहीं है. तो मैंने कैथी को चिट्ठी लिखी, बड़ा अच्छा. फिर मैंने कहा 10 रुपये तो दो. 10 रुपये लेके फिर चिट्ठी लिखी. मैंने कहा कैथी आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू जर्मन साइंस, आई वांट टू कम देयर. मगर मेरे पास ना एयर फेयर है, ना मेरे पास टैक्सी फेयर है, ना मेरे पास खाने का फेयर है. अब ये 3 प्रॉब्लम है, ये 3 सॉल्व कर दो, आई विल कम टू जर्मनी. एंड आई थिंक दे आर वेरी नाइस पीपल बिकॉज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट साइंस, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ब्रेन्स. तो कैथी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी टिकट भेज रही हूँ आने जाने की, और तुम्हारे रहने का मैं वहाँ पे होटल बुक करवा रखा है जिसमें तुम्हें ब्रंच मिलेगा. उस समय ब्रंच भी नहीं पता था, हमें तो ब्रेकफास्ट और लंच पता था. तुम्हें ब्रंच मिलेगा एंड बट मेक श्योर यू टेक ए कैब बाय योरसेल्फ फ्रॉम योर होम टू एयरपोर्ट, और उसका भी पैसा हम रीइंबर्स कर देंगे. गिव अस ए चिट्ठी ना, वो रसीद होती है. मैंने कहा बस अब रुक जा, मैं आ रहा हूँ. तो मैंने अपने किसी रिश्तेदार से थोड़े बहुत पैसे उधार ले लिए. एंड देन यू नो दे आल्सो हेल्प मी. वीजा फीस वाज आल्सो 3,700. नाउ इट्स 6,000 और 7,000, आई डोंट केयर. बट एट दैट टाइम इस बार 3,500 रुपये VFS का वीजा लगता था. सारे पैसे उधार करके कर लिया. एंड आई टुक दिस, एक्चुअली वी डिडंट हैव इवन द रोलिंग, वो टैची नहीं होती, तो वो मैंने एक रिश्तेदार से ले ली. तो अपने बैग वैग डाल के आई वेंट टू जर्मनी. फ्रैंकफर्ट में उतरा. सो माय फादर, मेरे को लगा इंडिया की तरह सस्ता होगा, तो मैं जैसे ही फ्रैंकफर्ट में उतरा मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए थे. मेरे पास कोई फोन नहीं था, मेरे पास सिर्फ $2,000 वो थे, यूरोस थे. 200 यूरोस. मेरे पास कोई 12, उस समय यूरो 60 रुपीज का था. मेरे पास कुछ 12,000 रुपए थे. 12,000 के मेरे को 200 यूरो मिल गए. वो 200 यूरो लेके गया. मैंने कहा फ्रैंकफर्ट से कोलोन जाना है. कह रहे हैं सर 121 यूरोस प्लीज. मैंने कहा ये क्या है? कह रहे हैं कि आप इंस्टेंट अगर टिकट लो फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू कोलोन, इट इज अराउंड 200 किलोमीटर्स, द कॉस्ट इज अराउंड 121. एंड ही सेड इफ यू वांट टू टेक द रिटर्न टिकट आफ्टर 4 days ऑफ इंटरव्यू, यू कैन टेक इट नाउ बिकॉज नाउ द कंबाइंड प्राइस इज 180 यूरोस. तो मैंने उसे 180 यूरोस दिए. 180 भी नहीं, 188. तो मेरे को 12 यूरो उसने वापस दे दिए. 12 euro means you cannot get even you can just eat one time a day. And I need to stay there for 5 days. तो मैं कोलोन पहुंच गया, बड़ा खुश हुआ. वहाँ पे मैं, there is a market called Neumarkt, which is like new market. In German they call it as Neumarkt. वहाँ पे टेलीफोन बूथ नहीं होता टी मोबाइल का, वहाँ पे किसी के 2 यूरो अटके हुए थे. तो मैंने उसी को खिसका दिया और पापा को कॉल किया. बट दैट वाज अ गुड लक ना, एक गुड लक होता है आपका. तो 2 यूरो किसी के अटके हुए थे, मैंने उसको जरा सा धक्का दिया और नंबर इंडिया का मिलाया और आई टॉक टू माई फादर फॉर 45 सेकेंड्स. मैंने कहा पापा पहुंच गया, सिटी पहुंच गया, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ. यूनिवर्सिटी गया, उन्होंने होटल दिखाया. अगले दिन इंटरव्यू था. सारे दिग्गज आ रखे थे. देयर आर मेनी यूरोपियंस, पीपल फ्रॉम UK, सम इंडियंस who did their masters from UK, they were also there for that scholarship. सब कुछ था. Everybody, tough competition, हर कोई तैयारी कर रहा था और एक ही होटल में थे हम सारे. And I was just like, वो पैंट नहीं पहनते इंडियन जैसे, जो पहले जमाने के पैंट और चेक वाली डार्क कलर की शर्ट, वो पहन के और ऐसे किनारे वाली थी. So I was one among those. So उन्होंने, at that time, nowadays there is a very fancy things called RNA sequencing, proteomics, omics technology we use in our lab nowadays. But at that time there was a buzz of microarray.
माइक्रो एरे हॉट था. देयर वर मेनी पीपल हु आर बेसिकली हैव एक्सपीरियंस इन माइक्रो एरे प्रोफाइलिंग. तो आई डिड नथिंग. मास्टर्स में एमक्यू में क्या किया, कुछ नहीं किया. पीसीआर भी नहीं करना आता था. सो next day interview, I gave a talk, everything went, and then I went to an interview. In interview there was a professor, Jonathan Howard, who is basically a husband of Maria Leptin. Maria Leptin is there is the biggest consortia, the biggest grant of entire Europe. It is called ERC, European Research Grant, and she is the chairman of Maria Leptin. So I worked with her as well, with Maria. So उसका husband था Jonathan Howard, एक थी मिर्का उलीरोवा, और एक थे प्रोफेसर रॉथ. 3 बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्ग. उसमें मिर्का वॉज यंग बट बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर थे. रूम में गया, मेरी फाइल थी उनके पास. पहले तो कंप्यूटर नहीं चलते थे, सारी चीजें. तो जोनाथन हावर्ड स्पेंड 6 months इन IISc बेंगलोर में उसने वो किया. तो उसको पता था CSIR क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है. GRE सब्जेक्ट, GRE सारी चीजें तो थी ना मेरे पास. तो उसने मुझे इंटरव्यू के समय ही बोल दिया, व्हेन आई वाज गोइंग आउट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, 5 million euros दे दिए तो कौन सा रिसर्च आइडिया करोगे. सिंपल क्वेश्चंस कि व्हाट इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू यू वांट टू क्रैक, ये जो नॉर्मल बायोलॉजी में होते हैं ना हमारे क्वेश्चंस, सब आंसर दे दिए. जैसे ही मैं जाने लगा ना, आई वाज वेरी शेकी कि यार क्या होगा, क्योंकि आई नो माई कंपिटिटर्स हाउ गुड दे आर. जोनाथन स्टूड अप एंड ही सेड वेट, घूम जा. मैं आया, उसने मेरे को हाथ बढ़ाया एंड देन ही शेक्ड हैंड विद मी एंड ही सेड, गौरव, इफ वी रिक्रूट यू इन आवर PhD प्रोग्राम, जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग PhD फ्रॉम इंडिया एंड यू आर नॉट गोइंग टू US. मैं उसे बोला नहीं कि मेरे पास US के तो पैसे ही नहीं है. तो मैं उस समय बोला कि मैं आऊँगा वापस, और उसने कहा कि देन वी विल सी ईच अदर अगेन. ये बोल के उस समय मैं बहुत रोया. आई वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम कि because when you have no money in your pocket and when you get something big, क्योंकि वो पूरे 4 दिन मैंने रात को कुछ नहीं खाया, दोपहर को कुछ नहीं खाया, because I cannot afford my dinner. I went to an Indian restaurant called Nirvana. उसके बाद मेरे को लगा शायद इंडियन है, शायद एक ब्रेड दे दे खाने को, रोटी चपाती कुछ तो दे देगा. उसने मुझे कहा कोलोन में कि you cannot Indians have a bad habit, they cannot afford, they come here. But after 10 years when I was in that city, I make sure nobody goes to that restaurant. जब आया ना, उसकी वहां पे गया था मैं बाद में. See, revenge always you take it. That is my beauty. I never leave anybody. ये कुछ खासियत तो मेरे अंदर भी है ना, तो मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ. तो वहाँ पे हो गया, मैं वापस इंडिया आया. मेरे पापा का नोकिया का छोटा फोन था, उसमें ब्राउजर पे जाके gmail.com, Johanna, who is my another friend, also on my Facebook, she is very close to me. She sent me an email at that time as a administrator, जो भी होता है, course coordinator. उसने लिखा, you are selected for the PhD position, fully funded, and please accept. मैंने उस email का 3 बारी रिप्लाई किया, yes I am coming, yes I am coming, yes I am coming. क्योंकि मेरे को ये लगा कहीं email अटक ना जाए बीच में. So after that I went for PhD. Let us, Swami ji 10 minute है ना, so I think I need 10 more minutes है. So sorry for that. So उसके बाद मैं PhD किया. One thing I sure कि पहली बारी जब मैं पाइपेटिंग कर रहा था, क्योंकि इंडिया में आपको ना टाइम नहीं मिलता, लोग करवाते भी नहीं है पाइपेटिंग बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज. MSc में 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं, बट दे नेवर लेट यू डू एक्सपेरिमेंट्स. My boss Zigrun was very nice. She saw me loading a gel, मेरे हाथ कांप रहे थे, तो कहती है आजा. मैंने कहा बोलो. कहती है कि have you ever run a PCR और load a gel? मैंने कहा no. तो उसने कहा अब एक काम करो, I give you 1 week, जेल बनाओ, डाई लोड करो, जेल बनाओ, डाई लोड करो, unless or until you fill the entire 24 wells within 1 minute. मैं हर रोज कम से कम दिन में 50 जेल बना के ऐसे करता था. Then my hand was very, pipette was just like a pen. So Zigrun really contributed, उसने मुझे स्पेस दिया, समझा फॉरेनर है ये वो. तो I still, she also came to Delhi on my wedding. वो गाजियाबाद की सड़कों पे नाची भी थी. तो that's another issue. Now the point is, and she's a 65 years old lady. She just got retired this year. So in my PhD, one thing people told me कि पेपर छापो, because if you want to get a job,
You need to get papers, publications, scientific research articles. Actually, क्योंकि मेरे को तो कुछ, I never took my breakfast. That's why I'm more like a potato somehow. मैं breakfast नहीं करता था, lunch नहीं करता था, सिर्फ dinner करता था. So, which is a very bad habit. So, in my PhD in experimental biology, I got 9 first author papers. I got summa cum laude, which is one of the highest distinction they give it to you in Germany, which means not gold medal तो university level का होता है कि एक university का topper है तो gold medal दे दिया. Summa cum laude is a country level, Europe level distinction. So I got that. So when you get summa cum laude, they pay you money. So I also got money for my hard work and everything apart from scholarship. Then I went for a postdoc. There are many more things I could tell, but due to time constraint उसको छोड़ते हैं. थोड़ा सा latest भी बताता हूँ. So then I got stellar PhD, big papers. Then I went to postdoc in Max Planck Institute. I got another big papers. Then again, नौकरी नहीं मिल रही. I was earning in Singapore. I was earning much more than what I earn now. बहुत पैसा मिलता था मुझे. But there was a boss. Now I am the boss. तो ये डिफरेंस है. मेरे को हमेशा खुद बॉस बनना था. तो मैं सिंगापुर से इंडिया में काफ़ी हेल्प वो कर रहा था. अगेन नौकरी नहीं मिली. यू नो हु हेल्प्ड मी? प्रणव सर. अगेन. सो कितने साल का डेल्टा हो गया? 2005 वी मेट. 6. आई मेट हिम अगेन इन व्हाट 20. बीच में बात होती थी, लेकिन 2018 आई कॉन्टेक्टेड हिम. आई सेड सर इंडिया में कोई नौकरी नहीं दे रहा. Nobody is giving me job. मेरे पास देखो ये मेरा प्रोफाइल है. तो मैं इसी इंस्टीट्यूट में आया. आज से कितने साल हो गए सोमी? कब मिला था? 2018 में ना. 18 में आया इसी इंस्टीट्यूट में. ये उस समय नया नया बना था. तो सर मुझे लेकर आए और यहाँ पे एक प्रोफेसर जीपीएस राघव, आई थिंक तुमने सुना होगा उनकी बात में. सो ही इज माई कलीग नाउ. ही इज हैविंग नेक्स्ट ऑफिस. हम दोनों की वॉल एक ही है ऑफिस की. सो वो बहुत प्यार करते हैं. ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड बायोइन्फॉर्मेटिशियन वर्ल्ड वाइड. बहुत बड़ी हस्ती है. तो प्रणव सर ने कहा कि राघवा सर से रिक्वेस्ट की कि गौरव से 2 मिनट बात कर लो. तो मैंने अपना पेपर जैसे इनसिक्योर बंदा नहीं होता आफ्टर डूइंग सो मच, मैंने लैपटॉप में पेपर खोल. मैंने कहा सर देखो ये किया. सो राघवा सर से बात करते करते अगेन माई आईज वर वेट बिकॉज इन आई अप्लाई टू IITs, all IITs, ICERs, a little bit of ICERs and all that. And you know, किसी ने नौकरी नहीं दी. अभी ट्विस्ट आएगा. ट्विस्ट अभी आएगा. दिस इज द पैशन व्हाट आई टेल यू. सो किसी ने फिर राघवा सर ने कहा चलो तुम इंटरव्यू दो. एंड यू नो ही एंड हिज डिपार्टमेंट रिक्रूटेड मी. एंड in 2022 or 21 I am the star of the department. That's a separate issue. In case you think you are not as good as person from maybe big cities or small cities or maybe some hi-fi अंग्रेजी बोलने वाले या कुछ भी, doesn't matter. Unless or until your science is good, if your brain works, if you can create logics, that is something which is required in science. इसके अलावा सब बकवास है. तुम अगर मद्रासी में क्या कहते हैं, मद्रासी में बोलो, चाहे बंगाली में बोलो, चाहे उड़िया में बोलो, if you know how to make logics and how to solve a big complex problem and how to ask a problem which is even more difficult, if these 3-4 things you know, nobody asks about language. कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, trust me. But till today, one thing I make sure कि science is the thing which is the of highest priority in my life till today. You guys do surf, तुम फेसबुक को स्क्रॉल करते होगे रात को फोन पे बैठ के, मैं पेपर पढ़ता हूँ फोन पे. That is the difference. So in case you guys think कि CSIR ही पाना is my life, no. Doing PhD is taking admission in nursery for science. ये तुम्हारी नर्सरी है. Getting a career in science is one of the most difficult job. PhD करके PhD की तौहीन मत करो. अगर साइंस करनी है, either you become a topper or you become a failure. You leave science. Don't be in between. मैं ये अपने बच्चों को बोलता हूँ, one of the beautiful girl, why I am telling you this story, because when I came back to India, I requested Pranav sir again कि मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, कोई स्टूडेंट दे दो. So there was a very nice girl, I think Ayushi Mittal. So she is like my second PhD student.
My first PhD student is in Harvard Medical School, doing his postdoc now. So वो मेरी दूसरी स्टूडेंट थी आयुषी. आयुषी पाथफाइंडर से ही पढ़ी, उसकी ऑल इंडिया रैंक CSR, हाँ हाँ 13th रैंक था ना, 13वीं रैंक थी उसकी. तो वो मेरी लैब में आई, उसको लगा सर भी नए हैं, मैं भी नहीं हूँ, क्या करेंगे. She spent 3 years now. She published 7 papers, and she is the first author of Nature Chemical Biology. I think everybody heard of Nature, am I right? So she is the first author, and it's a Nature from India. There is no foreign collaboration, nothing. I got this paper from IIIT Delhi, and I am the senior person, the last author, and she is the first author. So, coming back to the game again. So, what has she done in my lab? She has done only one thing: hard work. कुछ मायने नहीं रखता, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, कुछ मायने नहीं रखता. आज की सिचुएशन और कल की सिचुएशन में बहुत फर्क है. कुछ मायने नहीं रखता. एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड. द थिंग यू थिंक इज वर्थलेस कैन बिकम योर प्रोफेशन टुमारो. लेकिन नेवर गिव अप. मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी. आज भी जैसे व्हेन आई जॉइंड प्रणव सर कह रहा हूँ, राघवा सर जो है, तो मैं हमेशा ऐसे जब भी चलता था मैंने कहा हम छापेंगे, तफरी मारता हूँ मैंने कहा मैं छाप के दिखाऊंगा. सो आई डिड दैट एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग नाउ. आफ्टर गेटिंग दिस पेपर इवन आई एम वर्किंग मोर हार्ड. कल रात को मैं 2 बजे सोया. आई एम वर्किंग मोर हार्ड बिकॉज आई वॉन्ट एवरीथिंग. जो मुझे पहले नहीं मिला ना, वो मुझे अब चाहिए, और मैं किसी की नहीं सुनूंगा. मेरे को किसी का नहीं सुनना. अब चाहे लोग मेरे को कहते हैं कि गौरव इज वेरी एटीट्यूड ड्रिवन. सो बट द पॉइंट इज you need to do one thing कि never give up यार. If you are weak, any person can beat you. कोई भी तुम्हें they can throw you out of the system in few minutes. But if you are strong in your subject, अगर तुम्हें अपनी subject की knowledge है ना, nobody, they will think 1,000 times before firing you. तो यही है. आई थिंक आई मीन इफ एनी वन ऑफ यू हैव गेट अ चांस टू पास IIIT Delhi, we are sitting nearby Nehru Place. Very lovely campus, very beautiful campus. I am in the research and development block, so just pass by and I mean I will introduce you to my PhD students. You can talk to them, scientific discussion karna, but my only thing is think beyond the books. अगर तुम्हें साइंस में अगर तुम्हें बनना है, इफ यू वांट टू बिकम लाइक समथिंग लाइक मैरी क्यूरी, देन यू हैव टू बी मैड लाइक मैरी क्यूरी. पागल होना पड़ेगा. एंड आई थिंक देयर इज नो हार्म. साइंस इज वेरी डिफिकल्ट. समटाइम्स योर ओन पीपल विल से यू आर मैड, बट दैट्स फाइन. पैसा आ रहा है, वेरी गुड. पैसा है, इज्जत है. These are the two things which we, and most important thing, if you do a business anywhere, किसी स्टार्टअप में चले जाओ, Amazon में नौकरी कर लो. My student got job in Google and Microsoft. 2 of my BTech thesis student, they earn 10 times more than me. They got an offer from Google and another girl got an offer from Microsoft. 10 गुना ज्यादा पैसा मुझसे कमाते हैं. But the point is they work for somebody, I work for myself. That is the difference. मेरा मन चाहेगा लैब जाऊं, नहीं जाएगा नहीं जाता. Nobody in this world can force me to say कि you do this, you do that. You have a flexibility. I can work late night, I can compensate, but there you always need to do what company wants. Here I do what I want. That's the only difference. So guys, कोई और प्रश्न है तो पूछो. I think I already took a lot of time. Sorry for that. And thanks for listening. कोई क्वेश्चन है तो बताओ. I can happy to answer. पूछ लो यार, शर्माओ मत ऐसी. कोई मुंह खोलेगा? हाँ हाँ, बैठ के पूछो, नहीं खड़ा नहीं होना बार बार. हाँ बोलो. मतलब आप पब्लिकेशन के बारे में बता रहे थे सर कि हाईएस्ट पब्लिकेशन, तो सर व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर? So the highest impact factor I got, so I have published 15 papers from India in 3 years, and in my career the highest is 27 impact factor as a first author. From my lab I got the highest, which is 17 impact factor, and I got 5 papers about 10 impact factor from my lab. So now I have 2 published papers. Uh-huh. In Elsevier, means both the papers in Elsevier in environmental research. Uh-huh.
one of 8.4 impact Hmm. and one of 3.4 impact. And so, sir, is it means इसका कुछ है future में sir? मैं तुम्हें एक सच बात बोलूं, people criticize, I mean this impact factor is a very good thing, but it is a very unsaid thing. ये सच बात है. Being in a faculty, when you know we sit in faculty recruitment, नए नए लोग आते हैं, रिक्रूट करते हैं. 3 चीजें याद रखना है जिंदगी में. NCS, कोशिश करो ये तीनों आ जाएं. इम्पैक्ट फैक्टर कोई नहीं पूछेगा. NCS समझ आता है? नेचर, सेल साइंस, समझ गई? ये 3 ले लो करियर में. जिस दिन ये आ गया ना, you will get every job. And you should only dream for these. People say they are, you know, बड़ा मुश्किल होता है, ये होता है. See, I can tell you, I published JBC, Journal of Biological Chemistry, one of the reputed. किसी ने घास नहीं डाली. I published Bioinformatics. मैं अपने डिपार्टमेंट में आया. People told me, you know, कि Bioinformatics is a very difficult journal to publish. मैंने कहा चलो निपटाओ. फिर मेरे को बोला JBC is a very difficult journal, निपटाओ. लेकिन इसके अंदर कुछ इज्जत नहीं मिली. The moment ये NCS का टैग लग जाता है ना आपके ऊपर, you become in the limelight. And I will get more. अभी तो गेम शुरू हुई है. लेकिन I mean, answering your question, my only suggestion will be do a stellar PhD. तुमने PhD नहीं करी ना अभी? Do a stellar PhD. Stellar, बिल्कुल. Publish as much as you can, but not in terms of number, in terms of quality. If you get Nature Ecology, let us say you are interested in environmental sciences, there is a journal called Nature Ecology. Publish one paper in Nature Ecology, you are done. You don't need 100 papers. One paper in Nature Ecology. और उसी वो one paper will be equivalent to 20 papers. I can give you in writing. Maybe more than that. Nature Ecology हो गया, Nature Human Behavior हो गया. Just publish there. हाँ हाँ पूछो बैठ के. पीएचडी करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स में एम होना चाहिए? मैं इंस्टीट्यूट नहीं बोलूंगा, मैं लैब बोलूंगा. ऐसी लैब जो साल में बड़े पेपर छापे. ऐसा बॉस जो तुम्हें पीएचडी स्टूडेंट ना बोले और कलीग बोले कि यू आर माई कलीग, यू आर नॉट माई वर्कर और यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू आर माई कलीग. सी पीएचडी इज समथिंग विच यू डू इट बाई योर सेल्फ. गाइड को गाइड क्यों बोला जाता है, टीचर क्यों नहीं बोला जाता? हैव यू अंडरस्टूड दिस? बिकॉज इन पीएचडी इट इज नॉट समथिंग विच आई एम टीचिंग यू. इन पीएचडी आई एम गाइडिंग यू कि लेफ्ट मुड़ रही हो तो ठीक मुड़ रही हो, राइट मुड़ रही हो तो ठीक. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड गाइड. इफ योर गाइड इज गुड then it's all good. लोगों से बात करो ना जाके. तुम कमिटमेंट क्यों लेती हो? तुम जाओ लैब में बात करो, बच्चों के मुंह में उंगली डालो, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे. You know how I recruit people? Last week I got a student, a new PhD student from JNU Life Sciences. Trust me, she has only one pager. उसका और बाकी और बच्चे थे, you know, they have fancy papers, publication. तुम्हारी तरह उन्होंने भी नीचे. मैंने उनको नहीं लिया. मैंने एक लड़की ली जो कि सरल एक पेज में उसने अपना सीवी दे रखा था. आई जस्ट गिव हर ए ऑफर. यू नो व्हाई? लीगेसी मैटर्स. शी डिड हर बैचलर्स फ्रॉम BHU, मास्टर्स फ्रॉम JNU लाइफ साइंसेज. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट इनटू JNU लाइफ साइंसेज, पता है ना? एंड बाय अनफोर रीजंस शी इज नॉट गेटिंग ए PhD स्कॉलरशिप. सो आई ऑफर्ड हर ए जॉब फ्रॉम माई प्रोजेक्ट कि आओ PhD करो. So sometimes your perception is different when you recruit people. बहुत सारे बच्चे आते हैं, scholarships लेकर आते हैं. You cannot recruit anybody. टाइम ही नहीं होता. You only get those people whom you know कि ये कर सकता है. तुम ये पूछ रही हो कि मैं किसके पास जाऊं. तुमने कभी ये पूछा कि वो तुमसे अगर ये पूछे कि तुम कितनी अच्छी हो, which skills you have? ये भी तो है ना. It's the other part of the game. It's a, you know, it's a match. So मेरा मानना यह है कि अपने स्किल सेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो. इन PhD लैब जस्ट मैटर्स. द बॉस उंगली ज्यादा ना करे. यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. तुम्हें क्या लगता है वो मेरी जो जर्मन बॉस थी पाइपेट लेके मुझे करा? नहीं, उसने मुझे रिसोर्सेज दिए, टाइम दिया. करना तो खुद ही पड़ता है यार. सो व्हेन आई वाज ए PhD स्टूडेंट, मैं भाड़ में गई दुनिया. मुझे पेपर चाहिए था. यू नो माय ओनली थिंग वाज, यू नो, गधे जैसे घोड़े के यहाँ पे लगा नहीं देते कि ना उसे लेफ्ट दिखे ना राइट सिर्फ सीधा दिखे. मुझे सिर्फ पेपर चाहिए था. एंड टिल टुडे यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई क्रेव फॉर पेपर्स.
जैसे छोटा बच्चा जो चॉकलेट के लिए भागता है ना, कि वो रोता है कि मेरे को चीज़ चाहिए, मेरा अभी कोई भी पेपर अगर रिव्यू में होता है ना, मैं पागलों की तरह, मेरे को पता है इसका रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आएगा, रिव्यूअर्स का रिप्लाई, मैं एक दिन में 10 बारी उसको स्क्रॉल कर करके देखता हूँ, उसमें लिखा था योर रिजल्ट अवेटेड, रिजल्ट अवेटेड। वो पागलपंती जो है ना, वो पागल होना बहुत जरूरी है साइंस में। द डे यू गेट मैड इट मीन्स यू आर द वर्शिपर ऑफ साइंस। रामानुजन बनो, हमारे देश से ही तो निकले हैं यार रामानुजन। और अपने आप को कमजोर क्या समझना, मेरे को लोग कहते हैं ना कि सीवी रमन ने ये किया, उसने किया, भाई उसने किया, मैंने नहीं करना। आई डोंट वांट टू कॉपी एनीबॉडी, आई विल मेक माई सेल्फ एज ए आइडेंटिटी, और मैं बन के दिखाऊंगा। टाइम इज द लिमिट, यू शुड ऑल्सो हैव दिस गट्स ना, कि मैं करके दिखाऊंगी। अब तुम एक ये कह रहे हो कि ये सेब काफी डिलीशियस है और ये सेब काफी वो है, पका नहीं हुआ, अरे टाइम तो दो, शायद ये सेब आगे जाके इससे भी ज्यादा डिलीशियस हो जाए। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद बनाना, समझ रहे हो, यू आर वेरी यंग, सो मे बी आई एम 100% श्योर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तुम सब में से, देयर विल बी एटलीस्ट few of you or all of you who will be much successful than me, but time is the difference ना। मैं अपने आप को तुम्हारे साथ कंपेयर क्यों करूं, क्योंकि मैं तो रेस में आज से 10 साल 15 साल पहले दौड़ा था, ऑब्वियस है मैं आगे हूं, लेकिन द रिलेटिव स्पीड एट विच वी आर रनिंग, फॉर एग्जाम्पल आई नेवर गॉट ए नेचर केमिकल बायोलॉजी इन माई PhD, even I never got a nature in my academic career, as a full professor I got it थोड़ा लेट हो गया लेकिन आ गया, which is much better, it's my idea, so but my PhD student got it। मेरी बच्ची जिसको मैंने सिखाया उसका प्रोफाइल मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयुषी हैज मोर स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल देन मी व्हेन आई वाज ए PhD स्टूडेंट। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ना एक चीज बताना भूल गया, you know, Zigrun is a very nice lady. She's my PhD supervisor. So she told me in fun, क्योंकि she did her PhD in 1960-70 में, you know, बहुत टाइम पहले, कहती है I got a lot of publications। मैं ऐसे बोलता था, मैं Zigrun, one day I beat your publication record। तो तफरी, you know, I mean sometimes you have this तफरी ना, तो मैं करना जा रहा हूँ पेपर, 9 आ गए, तो जिस दिन मेरा PhD डिफेंस था उसके बाद वी वर हैविंग दिस शैम्पेन पी रहे थे, मैं और जिगरुन आराम से काउच पे बैठ के ना शैम्पेन पी रहे थे। तो जिगरुन को मैंने बोला यार आज तो डिफेंस हो गया, चलो हियर आई एंड, सो आई गॉट 9 पेपर्स, कुड यू प्लीज टेल मी तुम्हारे कितने थे? शी सेड 108 इन हर PhD। समझ गए? तो इससे क्या पता चला कि मैं जंग हार भी गया लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कर गया। सो व्हेन योर एम इज हाई और उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट समथिंग बिगर। सी यू।